Hi everyone, this is day fifth of our Python workshop. Right, today we will be discussing some problem solving question and some doubt from your side. Is my screen is visible, guys? Hope it is visible. Okay, we'll start with our some question from TCS NQT. Right, we will be doing some question from TCS NQT. Right, the question which have been asked by TCS NQT. That question we will be doing. And after that, we will be doing some HackerRank questions and some question from HackerEarth. Yeah. After that, we will solve your doubt, right? All the doubt related to Python. Okay. So this is the question, guys, from TCS NQT, and this question came in September slot, right? In day one in 2023. So what this question is telling, the problem is simple, guys, right? First, we will understand the question, right? What the question is trying to say. After that, we will solve that, right? After that, we will try to code or try to decode, right? How we can solve this problem. Okay. So we'll start with question reading, right? To analyze the question. So what question is saying that you have given a string of input consisting of star and hash, right? We are having a string, right, that contains star and hash, right? I'm having a string that contains some stars, right? Let's say 3 star and 3 hash. Okay. This is the string which is having 3 stars and 3 hash. The length of the string is a variable. ठीक है, जो भी लेंथ होगी वो एक वेरिएबल होगा, n वेरिएबल, लेट्स से n equals to 6, right? That n might be 6, 7, 8, right? The length of the string. The task is to find the minimum number of hash or star to make a valid string. ठीक है? The string considered valid if the number of star and hash are equal. ठीक है? So the number, when will be the string is a valid string, right? So at the times when we have the same number of star, let's say we have 2 star and 2 hash, then this will be a valid string. This will be a valid string. Let's say I'm having 3 star, but 1 hash. So this will not be a valid string. This will not be a valid string. So whenever we will trying to analyze the problem, so at that times we just read the problem. After that, right, we will try to write on pen or paper what is the question trying to say, right? So here, whenever the string will be valid at the time when we have the same number of star and same number of hash, right? The number of star and hash should be equal to become a valid string. If it is not, then some hash or star will be required to get into that valid string. Let's say I'm having 2 star and 1 hash. So 1 hash here required to become a valid string. Take up. So we will here the star and hash can be at any position in the string, right? So ऐसा नहीं होगा कि पहले स्टार स्टार आ रहा है या फिर हैश हैश आ रहा है. So star और hash बीच में भी आ सकते हैं. Let's say star hash and star hash, right? This will be a valid string because it is having 2 star 2 hash. ठीक है? The output will be a positive or negative integer based on the star and hash in the input string. ठीक है? So यहाँ पे कितने स्टार या फिर हैश हम ऐड करें या फिर रिमूव करें so that it will be a valid string, ये हमें बताना है. ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. ठीक है? सो क्वेश्चन सबको समझ में आया कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से? क्वेश्चन सबको समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई एम हैविंग वन स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ऑफ स्टार एंड हैश एंड आई शुड गिव, राइट, हाउ मेनी स्टार और हैश शुड बी रिक्वायर्ड और डिलीट फ्रॉम दिस स्ट्रिंग टू बिकम अ वैलिड स्ट्रिंग. और वैलिड स्ट्रिंग कौन सी होगी? जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टार इक्वल टू नंबर ऑफ हैश होंगे, वो एक वैलिड स्ट्रिंग होगी. वो एक वैलिड स्ट्रिंग होगी. तो इस स्ट्रिंग को अगर मेरे को, लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मेरे पास एक स्टार है और 2 हैश है, लेट से. तो अब मेरे को अगर इसको एक वैलिड स्ट्रिंग बनानी है तो कैसे बनाऊंगा एक वैलिड स्ट्रिंग में? मैं इस या तो मैं इस वाले हैश को रिमूव कर दूंगा, इट विल बी अ वैलिड स्ट्रिंग, और या फिर मैं एक स्टार ऐड कर दूंगा तो इट विल बी अ वैलिड स्ट्रिंग. ठीक है? ठीक है, तो वन वुड बी माय आंसर.
ठीक है, और -1 वुड बी माई आंसर बिकॉज आई नीड टू रिमूव वन हैश फ्रॉम हियर। ठीक है, सो द नंबर द आउटपुट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी बोथ, राइट, इट कैन बी बोथ। ऐसा तो नहीं है कि अगर वन नेगेटिव आया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सही तो उस टाइम पे भी है जिस टाइम पे मैं एक हैश को ऐड कर रहा हूँ और एक हैश को रिमूव कर रहा हूँ, और सही उस टाइम पे भी जिस टाइम पे मैं एक स्टार को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो द आंसर वुड बी 1 और -1, एनीथिंग, राइट, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं ऐड करने के बाद में भी उसको वैलिड स्ट्रिंग बता सकता हूँ और मैं उसको रिमूव करने के बाद में भी वैलिड स्ट्रिंग बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्लियर आई थिंक। इफ इट इज नॉट, टाइप इन द chat box, right, we will discuss this question again, right? We just need to find the number of star or hash to be added or delete into the string so that it will make, so that we can make a valid string। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? If question is clear, then you can type yes or CLR in the chat box. If it is not, then we will discuss again, right? Because uh, to analyze this question rise is important। समझ में आ जाएगा तो फिर हम कोड तो कर ही लेंगे फटाक से। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। अब हम इसके कोडिंग पार्ट पे आते हैं कि यार हाउ वी विल डूइंग दिस। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे एक लेट से मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, मैं क्या करूंगा इसमें, इस वैलिड स्ट्रिंग के अंदर क्या करूंगा मैं, इटरेशन की हेल्प से आई विल काउंट द नंबर ऑफ स्टार, आई विल काउंट द नंबर ऑफ हैश। ठीक है, तो एक एक करके मैं नंबर ऑफ स्टार और नंबर ऑफ हैश को काउंट कर लूंगा, और फिर मैं एक इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, सो दैट आई विल गेट वन आंसर, दैट वन आंसर विल बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट करूंगा, तो लेट्स से आई एम काउंटिंग फ्रॉम हियर, तो आई एम हैविंग 3 स्टार, आई एम हैविंग 3 हैश। ठीक है, आई एम हैविंग 3 स्टार एंड 3 हैश, मींस द नंबर ऑफ स्टार एंड हैश आर इक्वल एंड दिस इज द वैलिड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सो द आंसर वुड बी 3 - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ लेट्स से आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग इन विच हैविंग दो, जिसमें 2 स्टार है और उसके अंदर एक हैश है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 स्टार -1 हैश इक्वल्स टू 1, सो 1 स्टार 1 हैश शुड बी एडेड ओवर हियर, राइट, सो दैट इट कैन मेक, वी कैन मेक अ वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे हम करेंगे, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टार, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ हैश, देन वी सबट्रैक्ट देम एंड विल गेट द आंसर, कि कितने हैश या फिर कितने स्टार लगेंगे इस स्ट्रिंग को वैलिड बनने के लिए। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर। ठीक है, तो वी विल यूज फॉर लूप फॉर दैट, राइट। एक एक स्ट्रिंग ले लेंगे हम इनपुट में पहले तो यूजर से, राइट, लेट्स से आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये मैंने स्ट्रिंग ले ली, देन वी विल इटरेट दिस, राइट, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और वी विल कैलकुलेट, राइट, नंबर ऑफ स्टार एंड नंबर ऑफ हैश in this string, right, in this string, let's say I'm having this string in this string। ठीक है, so we will calculate the number of hash and star। ठीक है, if I is equals to star, we will take two variable, right, one is star and one is hash। ठीक है, दो वेरिएबल ले लेते हैं अपन, एक ले लेते हैं स्टार, ठीक है, और उसकी वैल्यू हम 0 रख देते हैं, और एक ले लेते हैं हैश, उसकी वैल्यू भी 0 रख देते हैं। ठीक है, we will count this, right, number of star now 0, right, we will count in we will count over here, and the number of hash is also 0, we will count over here। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, i if I equals to star, then we will increase the value of star equals to star plus 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें, स्टार इक्वल्स टू स्टार प्लस 1। ठीक है, सो ये कोड और ये कोड सेम ही है, स्टार प्लस 1 इक्वल्स टू स्टार प्लस इक्वल्स टू 1, ये भी सही है, और स्टार इक्वल्स टू स्टार प्लस 1 ये भी सेम कोड है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, वो शॉर्ट फॉर्म है उसका। एल्स अगर मेरा ये स्ट्रिंग मेरी स्टार और हैश से ही कंटेन करेगी, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं मेरे पास, ठीक है, स्ट्रिंग और स्टार ही आएंगे, तो मैं एल्स डायरेक्टली लगाऊंगा, और एल्स के अंदर अगर वहां पे स्टार नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहां पे हैश होगा। ठीक है, तो मैं हैश के अंदर चीजें प्लस कर दूंगा, हैश प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, और मैं लास्ट में इन दोनों को माइनस कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा, आई विल सब्ट्रैक्ट स्टार फ्रॉम हैश। किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस में आंसर सेम रहेगा, अगर माइनस में भी आंसर आएगा तो भी सही रहेगा, अगर प्लस में आएगा तो भी सही रहेगा, राइट, इट्स नॉट दैट बिग डील।
ठीक है, और स्टार और हैश को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन, राइट। नहीं, स्टार प्लस प्लस नहीं लिख सकते। स्टार प्लस प्लस इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सी प्लस प्लस में काम करता है ये। अगर स्टार प्लस प्लस लिखूंगा मैं तो इट माइट बी गिव मी एरर। ठीक है, लिख के बता देता हूँ मैं। लेट्स से आई एम हैविंग वन वेरिएबल दैट इज एस इक्वल्स टू वन, और इसको अपन लिख के देखते हैं कि प्रिंट एस प्लस प्लस लिख के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एस प्लस प्लस इनवैलिड सिंटेक्स दे देगा क्योंकि सी में काम करता है ये एस प्लस प्लस, बट पाइथन में काम नहीं करता। पाइथन में हम स्टार प्लस इक्वल्स टू वन और स्टार इक्वल्स टू स्टार प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन और आई प्लस वन इक्वल्स टू वन ऐसे लिख सकते हैं मैं हम, लेकिन सी में लिख सकते हैं ये। सी में इट विल वर्क, सी प्लस प्लस और सी में ये काम करेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस और आई प्लस वन ये काम करेगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, लेट्स से आई एम गिविंग द स्ट्रिंग स्टार 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 और हैश हैश हैश। ठीक है, मैंने ये स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, और इसको मैं चला के देखता हूँ कि कितने स्टार या फिर सो नंबर ऑफ स्टार और हैश रिक्वायर्ड जीरो। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही वैलिड स्ट्रिंग है। लेट्स से मैं इसको एक इनवैलिड स्ट्रिंग देता हूँ। लेट्स से आई एम गिविंग अ इनवैलिड स्ट्रिंग दैट इज स्टार स्टार और हैश। ठीक है, और हैश ये मैंने इनवैलिड स्ट्रिंग दी है। इसके अंदर मेरे को या तो मैं एक स्टार को रिमूव कर दूं इसे वैलिड बनाने के लिए। लेट्स से आई एम हैविंग दिस स्ट्रिंग दैट इज हैविंग टू स्टार एंड वन हैश, या तो मैं इस स्टार को रिमूव कर दूं इसको वैलिड बनाने के लिए, या फिर मैं एक एक और हैश यहाँ पे ऐड कर दूं इसको वैलिड बनाने के लिए। बोथ द कंडीशन विल बी ट्रू। ठीक है, दोनों तरीके से मैं इसको वैलिड बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगर इसको मैं रन करूंगा, इसको रन करूंगा तो वन वुड बी प्रिंटेड बिकॉज वन स्टार कुड बी एडेड, और वन वन स्टार could be removed from here, or one hash could be added over here to make this string valid. ठीक है, तो ये समझ में आया, ये कोड समझ में आया सबको। ठीक है, हाउ वी आर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड हाउ वी आर सॉल्विंग this kind of problem, right, which has been asked in TCS NQT, right? तो ऐसी स्ट्रिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज में, स्ट्रिंग से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड। ठीक है, so this is clear. If it is not right, you can write your question. If it is clear, then we will move it to our next question of TCS NQT. And that question also I have solved in our 1 hour workshop, 1 hour Python workshop. ठीक है, so ये क्वेश्चन भी important क्वेश्चन है जो कि TCS NQT में आया हुआ है। ठीक है, and that question asked in about 2022 I think। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन पेपर से ये। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ सुपर मार्केट मेंटेन्स अ प्राइस फॉर्मेट ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट। अ वैल्यू ऑफ एन इज प्रिंटेड ऑन ईच प्रोडक्ट व्हेन द स्कैनर रीड्स द वैल्यू ऑफ एन ऑफ द आइटम, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ वैल्यू एन प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, द टास्क हियर टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर इन सच अ वे that given code of any item n in the product, multiplication of the digit of the value should be computed at a price। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर एन, लेट से मेरे पास एन अगर ऐसी लिखी हुई है, लेट से एन मेरे पास 543 अगर दिया हुआ है वहां पे बारकोड के ऊपर, या फिर उसके कोड के ऊपर 543 अगर दिया हुआ है, सो उस प्रोडक्ट की प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? उस प्रोडक्ट की प्राइस ना ऐसे कैलकुलेट होगी, द आइटम ऑफ एन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स। ठीक है, सो उस आइटम का जो मेन प्राइस होगा, कंप्यूट प्राइस होगा, वो कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स होगा, मतलब इन डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा उसका प्राइस। तो व्हाट इज द प्राइस? प्राइस विल बी 5 into 4 into 3। ठीक है, ऐसा हो। लेट्स से आई एम हैविंग 3 2 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, सो व्हाट विल बी द प्राइस? प्राइस विल बी 3 into 2 into 1। ठीक है, सिक्स सिक्स विल बी द प्राइस। ठीक है, 6 विल बी द प्राइस ऐसे। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े सिनेरियो बेस्ड, ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन सिनेरियो बहुत अच्छा दिया हुआ है कि दिस इज द सिनेरियो एंड दैट इज द इनपुट एंड दैट इज द आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? सर वी नीड टू, we don't need to print the valid words, we only need to print the how many valid, नहीं, how many valid or how many valid star or hash should be required to become valid this string।
ठीक है, दैट वी नीड टू प्रिंट, क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक दैट, राइट। अगर क्वेश्चन में और कुछ पूछा होता तो फिर हम लोग मे बी हम लोग उसको ये प्रिंट करते कि वो वैलिड है कि नहीं है। इफ द नंबर ऑफ स्टार इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैश देन इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग, तो फिर हम वहां पे प्रिंट करते हैं इफ नंबर ऑफ स्टार एंड हैश इज इक्वल टू, देन इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग और इट इज नॉट वैलिड स्ट्रिंग। बट क्वेश्चन ने वैसे पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने स्टार और हैश लगेंगे उसको वैलिड बनाने में, तो हमने बता दिया उसको कि एक यहाँ पे हैश लगेगा उसको वैलिड बनाने में। दैट इज द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, राइट। ठीक है, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, हमको सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसकी हेल्प से जो भी नंबर वहां पे हो, ठीक है, लेट्स से 541 यहाँ पे दिया हुआ एक नंबर, so we have to calculate, we have to multiply all the digit of the number and we have to just print, so 5 into 4 into 1, ठीक है, that would be 20, 20 will be printed, this is the question। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी सी समरी है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। We'll move towards the programming logic of this question। ठीक है, let's say I am having one number that is n, और इसको मैं इनपुट ले लूंगा। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग में ना इटरेट करना बहुत आसान होता है। लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने इटरेट किया ना, इटरेट कैसे, एक एक करके चीजों को निकालना। यहाँ पे जब मेरे पास एक स्ट्रिंग थी उसको मैंने फॉर आई इन एस करके फटाफट एक एक करके निकाला था, तो वो बहुत आसान हो जाता है स्ट्रिंग में। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द इनपुट इन स्ट्रिंग। सो हमने एक इनपुट ले लिया स्ट्रिंग में, और फिर हम ना उस उस इनपुट के बाद में हम क्या करेंगे, लेट्स से ये इनपुट आ गया 3 to 1, तो हम एक एक करके इटरेट करेंगे और एक एक करके इनपुट्स में से वैल्यूज उठाएंगे। ठीक है, वैल्यूज उठाएंगे 3 into 2 into 1 लाइक दैट। ठीक है, तो एक में वेरिएबल ले लूंगा m इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड व्हाई आई एम टेकिंग m ओवर हियर, व्हाई आई एम टेकिंग 1 ओवर हियर, राइट, आई विल टेल यू। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाई आई एम नॉट टेकिंग 0 ओवर हियर, आई विल टेल यू। ठीक है, फॉर आई इन, फॉर आई इन n, क्वेश्चन के अंदर से यहाँ से n से हम हर एक वैल्यू को इटरेट करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस आई टेम्परेरी वेरिएबल। फिर हम क्या करेंगे, इस m के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। m के अंदर स्टोर मीन m के अंदर मल्टीप्लाई करके उसको स्टोर करेंगे, तो m इक्वल्स टू m इंटू n टाइम। n टाइम मीन्स what this function will do, this function will typecast this I into integer। ठीक है, this I value is string value because we have taken the input in string। ठीक है, तो यहाँ पे जो I वैल्यू होगी ना, ये क्या करेगी, यहाँ पे जो इंटीजर ये वाला जो फंक्शन है इंटीजर I, ये ना टाइप कास्ट कर देगा इस I को काय में, इंटीजर में, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है। कल हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्सन, वी कैन कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग इनटू इंटीजर और वी कैन कन्वर्ट एनी इंटीजर इनटू स्ट्रिंग और एनी फ्लोट इनटू इंटीजर लाइक दैट। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे इस इनपुट स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, उसमें से उसको नंबर बना देगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और इंटीजर क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि वी जस्ट वांट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन तो चाहिए नहीं, हमें तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर टाइप कास्टिंग दिस। ठीक है, तो हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया और एन के अंदर उसको स्टोर कर दिया, आफ्टर दैट वी विल प्रिंट दिस, आफ्टर दैट वी विल प्रिंट दिस। ठीक है ना, अब इसको जैसे मैं रन करके देखता हूँ। अब जैसे मैंने इसको एक इनपुट दिया 541। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर विल बी द 20 बिकॉज 5 into 4 into 1। ठीक है, आंसर विल बी 20, 5 into 4 into 1। एंड व्हाई आई एम टेकिंग 1 ओवर हियर, अगर मैं 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं m इंटू, यहाँ पे ये m लिखा है ना, m इंटू समथिंग करूंगा, m इंटू 1 इक्वल्स टू 1, m इंटू 1 इक्वल्स टू m, मीन्स m इंटू समथिंग और 1 इंटू समथिंग गोस टू समथिंग। ठीक है, तो 1 इंटू m इक्वल्स टू m। अगर मैं यहाँ पे इस 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता, तो m इंटू जीरो विल बी 0 और i इंटू जीरो विल बी 0, तो i इंटू जीरो विल बी 0, तो मेरा आंसर 0 हो जाता है। मेरे को 0 आंसर नहीं चाहिए, मेरे को तो उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 1 ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे m की वैल्यू, तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 आई, तो 1 इंटू दिस 3 विल बी टेकन। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है 3 to 1। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 3 आया, 3 यहाँ पे आया, तो 1 into 3, m की वैल्यू कितनी हो गई 3, एन की वैल्यू 3 आ गई। देन अगेन लूप विल एग्जीक्यूट, 3 हो चुका है, अब 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन एम की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे एम की वैल्यू तो 3 थी सही, तो एम की वैल्यू विल बी 3, 3 इंटू इंटाई, इंटाई मीन्स इंटू 2, 2 3 2 यहाँ पे 6 हुआ। देन अगेन इस 2 के लिए भी लूप चल चुका है, अब ये 1 के लिए लूप चलेगा। ठीक है, देन अगेन एम की वैल्यू क्या हो गई, एम की वैल्यू 6 थी, तो 6 इंटू 1, 6 विल बी प्रिंटेड।
That's simple. Hope this is clear, guys. If it is not, you can ask question, right? We will reiterate this question again. ठीक है? Is it clear, guys? This question is clear. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. सिनेरियो बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दैट इज नॉट बिग क्वेश्चन, बट these types of questions asked in TCS, NQT, Wipro, like these companies. ठीक है. Okay, if it is clear, then we can move forward to some hacker rank or hacker earth question, right? Because we have done two TCS NQT question. Okay. We will move forward to one hacker rank challenge question. ठीक. ये क्वेश्चन है हैकर रैंक का. ठीक है. First we'll understand this question, right? What the question trying to say, right? Because this question is from set, right? Yesterday we have discussed about sets, right? What is the set and how the sets not including the duplicate types of value into it. So this we have learned yesterday. So बहुत आसानी से आप लोग भी कर लोगे इस क्वेश्चन को. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या दिया है? वी वांट टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट इनटू एग्जिस्टिंग सेट्स. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऐड ऑपरेशन. ऐड ऑपरेशन की हेल्प से हम चीजों को ऐड करना चाहते हैं. सेट के अंदर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं. लेट्स से यहाँ पे मैंने एस डॉट एच को ऐड कर दिया, यहाँ पे एस डॉट एड को हैकर रंग को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया. ये चीज है. इफ ऐड द एलिमेंट टू द सेट रिटर्न नन. ठीक है, जब भी मैं ऐड करता हूँ चीजों को तो यहाँ पे रिटर्न नन करता है ये. ठीक है, जैसे मैं वहां पे मैंने एक बार एल डॉट लिस्ट या फिर एल डॉट अपेंड चलाया था. एल डॉट अपेंड शुड बी अपेंड the element into list, right? But it will return zero or it will return none. ठीक है, मैंने 5 को अपेंड किया यहाँ पे तो ये अपेंड तो कर देगा यहाँ पे, बट ये इट विल रिटर्न, दिस फंक्शन विल रिटर्न नन. सेम थिंग यहाँ पे, अगर ये ऐड तो कर देगा लेकिन इट विल रिटर्न नन, राइट? इसे इग्नोर करो. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन के बोले अप्लाई द नॉलेज ऑफ ऐड ऑपरेशंस टू हेल्प योर फ्रेंड रूपल. ठीक है, रूपल की हमको हेल्प करनी है विद दिस ऐड ऑपरेशन. ठीक है, रूपल हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंट्री स्टैम्प. ठीक है, उसके पास बहुत सारी कंट्रीज के नाम है. शी डिसाइडेड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री. शी वांट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम देम. लेट्स से उसके पास बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके और ये अलग अलग कंपनीज है. इसमें क्या बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी, लाइक फ्रांस यहाँ पे आ गए. ठीक है, डुप्लीकेट डेटा भी है इसके अंदर. इस डेटा सेट में फ्रांस आ गया और यूएसए वक्त 2-3 बार आ गया. ऐसे बहुत बड़ा डेटा सेट भी हो सकता है. इट कुड बी 100 इनपुट्स और उन 100 इनपुट्स में अलग अलग कंपनीज के नाम दिए हुए हैं. ठीक है, उसमें कुछ डुप्लीकेट्स डेटा भी है. तो वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू गिव द डिस्टिंक्ट कंट्री. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री इनपुट. शी आस्क्स टू help you, right? You pick the name stamp one by one from the stock and country stamp. ठीक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री स्टैम्प. अब अपन को क्या करना है, एक एक करके इसमें से नाम को उठाना है और अपन को देखना है यार कौन कौन सी डिस्टिंक्ट कंट्री है. डिस्टिंक्ट मतलब कि लेट से अगर 5 डिस्टिंक्ट करनी है तो वी हैव टू प्रिंट 5. ठीक है, जैसे इसके अंदर ये पूरी कंट्री 7 कंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर 2 कंट्री ना, ये वाली और ये वाली. ठीक है, ये वाली और यूके. यूके और मेरी फ्रांस, ये ना डुप्लीकेट है. ये ना डुप्लीकेट है, यूके भी डुप्लीकेट है, फ्रांस भी डुप्लीकेट है. तो मेरे को डुप्लीकेट रिमूव करना है. ठीक है, और मेरे को ना डिस्टिंक्ट नंबर बताना है कि डिस्टिंक्ट नंबर वुड बी 5. तो 5 कंट्री डिस्टिंक्ट है मेरे पास, ये मेरे को आउटपुट में उसको देना है. ठीक है, और इनपुट जो होगा वो लाइन बाय लाइन सेपरेटेड होगा. इनपुट जो होगा मेरा लाइन सेपरेटेड होगा. देखा, इनपुट यहाँ पे लाइन सेपरेटेड है. ठीक है, इनपुट फॉर्मेट भी देख लेते. द फर्स्ट लाइन कंटेन इंटीजर एन. पहली लाइन मेरी इंटीजर एन को कंटेन करेगी. तो टोटल नंबर ऑफ कंट्री स्टैम्प, कितनी कंट्री है, लेट्स से 7 कंट्री. तो पहला इनपुट मेरा जो एन होगा, इट वुड बी 7, इट वुड बी 8, राइट? पहला इनपुट तो ये होगा. दूसरा, द एन लाइन, नेक्स्ट एन लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ कंट्रीज. ठीक है, एन लाइन जो होगी, अब नेक्स्ट 7 लाइन जो होगी वो कंट्री के नाम होंगे. ठीक है, इंडिया होगा, यूएसए होगा, यूके होगा, लाइक दिस. ऐसे 7 लाइन जो होगी वो कंट्री के नाम होंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री. ठीक है, we have to count and we have to print the number of distinct country. क्वेश्चन क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्लियर है तो हम कोड कोड बनाते हैं इसका. ठीक है, फर्स्ट वी विल टेक इनपुट, राइट? दिस इनपुट फर्स्ट वी विल टेक एन इनपुट. ठीक है, एक एन ले लेते हैं नंबर में हम लोग इंटीजर में. ठीक है, इनपुट. देन विल टेक फिर हम कितने इनपुट लेंगे? देन विल टेक नंबर ऑफ इनपुट, राइट, गिवन द वैल्यू ऑफ एन. जितनी भी वैल्यू एन होगी उतने हम इनपुट ले लेंगे. उसके लिए हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे.
फॉर लूप का यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, ठीक है, इट विल एग्जीक्यूट टू 0 to n-1, ठीक है। और फिर देन वी विल टेक अ वेरिएबल ए, और उस वेरिएबल में हम एक इनपुट ले लेंगे, ठीक है, उस वेरिएबल में एक इनपुट ले लेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, इस ए के अंदर हर बार इनपुट आएगा, कितनी बार, जितनी भी वैल्यू ऑफ एन होगी उतनी बार हम इनपुट लेते जाएंगे फ्रॉम द यूजर, और उस इनपुट को हम ऐड करते जाएंगे एक सेट के अंदर, ठीक है। लेट्स से आई एम हैविंग अ सेट एस, मैंने एक सेट एस बना लिया, एंड दैट इज दिस इज एम्प्टी सेट, मैंने एक एमसी सेट, और सेट क्यों ले रहा हूं मैं, सेट की हेल्प से ना मैं डिस्टिंक्ट वैल्यू अपने आप इसमें से निकल जाएगी। सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स, ठीक है, कल हमने पढ़ा था सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट, सेट ऑलवेज कंटेन यूनिक वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी। तो ए डॉट ऐड कर दूंगा मैं, और ऐड क्या कर दूंगा, सॉरी एस डॉट ऐड कर दूंगा, एस के अंदर में ए की वैल्यू को ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसमें सारी की सारी एस के अंदर, एस हमारा सेट है, उसमें सारी की सारी वैल्यू ऑफ ए जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जो भी हम देंगे कंट्रीज के नाम, वो ऐड होते जाएंगे। और उसके बाद में हम ना इसकी लेंथ प्रिंट कर देंगे, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स तो है नहीं, डुप्लीकेट्स तो रिमूव हो जाएंगे सेट के अंदर, सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड हम प्रिंट कर देंगे इसका लेंथ, लेंथ फंक्शन की हेल्प से हम प्रिंट कर देंगे एस, एस की लेंथ हम प्रिंट कर देंगे, कितने कितने डिस्टिंक्ट कंट्री है हमारे पास, वो हम प्रिंट कर देंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये कोड सबको क्लियर है, ठीक है, ये कोड सबको क्लियर है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेट मी रीइटरेट दिस। सबसे पहले हमने इनपुट एन ले लिया, देन विल टेक अ एम्प्टी सेट, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इटरेटिंग टू एन, एन नंबर 0 to n, क्योंकि हमको एन वैल्यूज चाहिए, 0 से n-1 तक वैल्यूज लेंगे, हम इनपुट लेंगे, देन वी आर टेकिंग इनपुट इन एन, देन वी आर एडिंग वी आर एडिंग द वैल्यू इनटू एस, एंड देन वी आर प्रिंटिंग एस, ठीक है। इसको एक और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। हम लोग ए में इनपुट ले रहे हैं, हम लोग ए में इनपुट ना लेते हुए हम डायरेक्टली इस एस में ही यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, एस के अंदर इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें हमने यहीं पे डायरेक्टली इनपुट ले लिया, और उसको पहले हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद में हमने उसको एस में ऐड कर दिया, ठीक है। इस एस के अंदर मैंने ऐड कर दिया इनपुट लेने के बाद में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने पहले सिंपल वाला बताया था, फिर मैंने ये वाला कोड बताया, फिर हम इसको सबमिट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, ये दोनों डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, यूके एंड फ्रांस दो डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, 5 मेरा आउटपुट आना था, एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू इज 5 मेरा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ये क्वेश्चन क्लियर है गाइस? इफ इट इज क्लियर आई विल शेयर अ लिंक विद यू गाइस, इस क्वेश्चन का लिंक शेयर कर देता हूँ। क्लियर है गाइस क्वेश्चन, और क्वेश्चन की जो कोडिंग हमने करी है, ये पार्ट क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, फाइन, वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, we'll move forward to our next question. That is, that question is from HackerEarth, right? First question we are doing from HackerEarth, because till now we have done about 10 question or 10 plus question from HackerEarth, but this is the first question of HackerEarth. Okay, I will share a link with you guys, then we'll start. ठीक है, सो क्वेश्चन करने से पहले ना एक चीज समझ लेते हैं, एक कोड, इंपॉर्टेंट कोड समझा देता हूं मैं। that code will be to how to reverse a string, right? How to reverse a string, कैसे एक string को, let's say I am having a string that name is couple kpl, and how to reverse this, right? I just want to reverse this string, ठीक है। तो हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी, स्लाइसिंग की हेल्प से हम इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। हमने एक दिन स्लाइसिंग पढ़ी थी, स्लाइसिंग क्या होती है, एक बड़ी स्ट्रिंग के छोटे छोटे पार्ट में हमको इसको लेके आना है, ठीक है। मेरे पास एक स्ट्रिंग बड़ी सी दी हुई है, ठीक है, ठीक, ये थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग है, और इसको ना अगर मेरे को छोटे छोटे पार्ट में लेके आना है तो मैं कैसे करूंगा, लेट से मेरे को जीरो से, ये जीरो वैल्यू से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, जीरो से लेके, ये जीरो से लेके यहाँ तक की अगर वैल्यू चाहिए मेरे को, 0 1 2 3 तक यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो 0 1 2 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे मिल जाएगी। लेट से मेरे को ना वैल्यू तो चाहिए सारी की सारी, ठीक है, मेरे को वैल्यू पूरी 8 तक चाहिए या फिर 6 तक चाहिए, और मेरे को ना हर एक के बीच में ना एक एक स्पेस चाहिए, ठीक है, स्पेस लेके चाहिए। तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये कैसे प्रिंट हुआ, एन प्रिंट हुआ, फिर एम वाई को इसने छोड़ दिया, फिर एन प्रिंट हुआ, फिर ए को छोड़ दिया, फिर एम को इसमें प्रिंट किया। लेट से मेरे को एंड तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा बीच में। तो ये क्या, ये स्टार्टिंग पोजीशन है गाइस, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है।
दिस इज द एंड पोजीशन, कहां तक जाएगी मेरी स्ट्रिंग, एंड दिस दिस विल बी द स्पेस, राइट, कितने मतलब कितनी कितनी चीजों के बाद में, ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे या फिर हम प्रिंट करेंगे, दिस विल बी अ स्पेस। इफ इट इज वन, देन कोई भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है, एक के बाद एक प्रिंट हो जाएगी। और अगर दो दिया तो ये एक एक को स्किप करेगा, एक वैल्यू को स्किप करेगा देन विल प्रिंट, देन एक वैल्यू को स्किप करेगा देन विल प्रिंट, ऐसे करेगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम जीरो टिल यहाँ तक चलेगा ये, क्योंकि मैंने बीच में कुछ नहीं दिया। बीच वाला जो होता है वो एंड पार्ट होता है, दिस विल बी द स्टार्टिंग पार्ट, दिस विल बी द एंड पार्ट, एंड दिस विल बी द स्पेस पार्ट, ठीक है, दिस विल बी द स्पेस पार्ट, ठीक है। तो ये ना अब एंड तक चलेगा, देखना ये एंड तक चलेगा। अब इसमें क्या क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखना क्या क्या प्रिंट हो रहा है। पहले इसने एम को प्रिंट किया, ठीक है, एन को फिर इसने इग्नोर कर दिया, फिर वाई को प्रिंट किया, ए को इग्नोर कर दिया, एम को प्रिंट किया, ई को इग्नोर कर दिया, आई को प्रिंट किया, एस को इग्नोर कर दिया, के को प्रिंट किया, ए को इग्नोर कर दिया, पी को प्रिंट किया और आई को इग्नोर कर दिया और एल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो लिखा है, अगर मैं यहाँ पे तीन दे दूंगा इसको, ठीक है, अगर मैंने इसकी स्पेस की वैल्यू तीन दे दी तो वो तीन तीन चीजें छोड़ के फिर मेरे को प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे एम हुआ, फिर एन और वाई को उसने इग्नोर किया और ए को प्रिंट किया, ठीक है, फिर उसने एम और ई को इग्नोर किया, आई को प्रिंट किया, ठीक है, ये आई को प्रिंट किया उसने, ठीक है, फिर उसने एस और के को इग्नोर किया और ए को प्रिंट किया। सो दिस वुड बी अ स्पेस, दिस वुड बी द लास्ट वैल्यू एंड दिस वुड बी द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ, लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट विल गोज टू एंड, और तीन तीन के डिफरेंस के बीच में, इफ आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं तो व्हाट इज इट, इट इज टेकिंग जीरो ओवर हियर, जीरो से, कहां से, जीरो से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, कहां तक जा रही है, एंड तक जा रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट में एन माइनस वन है और एन है और यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो जीरो जीरो से स्टार्ट हो रही है, एन माइनस वन तक जा रही है विदाउट एनी स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दो दे दूंगा तो एक एक छोड़ के लेगा वो, अगर तीन दे दूंगा तो दो दो छोड़ के लेगा, एन माइनस वन में चलती है ये, ठीक है, ऐसे। अब लेट से यहाँ पे ये जो चीजें थी, यहाँ पे जब मैं लिख रहा था टू या फिर वन लिख रहा था तो एक एक करके चीजें आगे बढ़ती जा रही थी, एक एक करके। दो लिख रहा था तो एक एक छोड़ के आगे बढ़ती जा रही थी, तीन लिख रहा था तो दो स्पेस छोड़ के आगे बढ़ती जा रही थी। लेट से मैंने अगर यहाँ पे माइनस वन लिख दिया लास्ट में, अगर मैंने माइनस वन लिख दिया तो क्या होगा, माइनस वन से यहाँ पे से चीजें स्टार्ट होगी और पीछे से चलना स्टार्ट कर देंगी, ये रिवर्स ऑर्डर में चीजें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में चीजें माइनस वन से, मतलब माइनस वन होते हुए आगे तक चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे अगर मैं माइनस वन देता हूँ, लेट से मैंने इसको माइनस वन दिया, ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रिंटेड, यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे ना ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ना उल्टी दिशा में प्रिंट हो जाएगी मेरे पास, सीधी की सीधी, ठीक है। स्लाइसिंग हमने कुछ पार्ट हमने थर्ड डे में कवर किया था, कुछ पार्ट हमने फोर्थ डे में कवर किया था और कुछ पार्ट तो था स्लाइसिंग का, ठीक है, वो हम आज कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे में एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता हूँ डायरेक्टली, अगर आपको किसी भी कहीं पे भी कोई सी भी स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस कोड, ठीक है। और इसको मैंने समझा दिया कि कैसे काम कर रहा है ये, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन एंड माइनस वन विल बी द काउंटिंग, राइट, माइनस वन और वन काउंटिंग पोजीशन, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करवा सकते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग स्ट्रिंग के और इसके अंदर गोट लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको अगर मेरे को रिवर्स करवाना है तो मैं डायरेक्टली ऐसे इसको रिवर्स करवा सकता हूँ और आई कैन प्रिंट TAOB, ठीक है, तो ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक मेरे पास क्वेश्चन है जो कि हैकर अर्थ का है, एंड इन दिस क्वेश्चन राइट वी हैव टू प्रिंट यस और नो इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ऐसे होती है जैसे ए बी, ए लिखा हुआ है तो दिस दिस इज द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को अगर मैं उल्टा करूंगा ना, अगर इस स्ट्रिंग को मैंने उल्टा किया तो कहां से चलेगी ये, यहाँ से चलेगी, इसको मैंने उल्टा किया ए बी है तो सेम थिंग विल बी देयर, ए बी ए बी ए, जैसे जहाज होता था ना हिंदी में, जहाज और जहाज, वैसे तो ए बी ए, इट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे अगर एक मेरा नाम दिया, यहाँ पे KAPI दिया, अब इसको मैं अगर उल्टा करता हूँ तो उल्टे करने पे क्या आएगा, LIPAK। तो ये और ये स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, ठीक है। पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है, जिस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करें और वो सेम रहे, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है A B B A,
ठीक है, अब अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, लेट से इसको मैंने रिवर्स किया, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, वापस से यहाँ पे ए आएगा, फिर बी और फिर देन ए। सो दिस इज द पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ये और ये दोनों सेम है। इफ अगर हम एक स्ट्रिंग को सेम रखते हैं ए बी ए, और इसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ इस स्ट्रिंग को, और यहाँ पे अगर वापस से ए बी ए आता है रिवर्स करने के बाद में, देन इट इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। देन इट इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ठीक है, ये समझ में आया पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है? अगर हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं और अगर वो सेम चीज आती है उसमें आउटपुट, देन इट इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। अगर रिवर्स करने पे सेम नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यूजर से इनपुट ले सकते हैं ना ये। लेट से मैंने एक इनपुट लिया, मलयालम लिया, ठीक है, ये मैंने एक इनपुट लिया, ये मैंने इनपुट लिया और इसको मैंने प्रिंट किया। ठीक है, तो मलयालम का मलयालम आ गया, ठीक है, सेम चीज आ गई। ठीक है, तो एम ए वाई ए, ये सेम चीज, ये अब मलयालम इक्वल टू मलयालम, ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर मैं उल्टा करूंगा, लेट से मैंने ये किया और उसको मैंने रिवर्स किया, तो इट इज गिविंग मी अ सेम वैल्यू। सो इट इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। वही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं एबीए से, छोटे से फॉर्मेट से। तो एबीए मेरी एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, रिवर्स करूंगा तो सेम आएगा। जैसे मलयालम भी मेरी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एम ए एल वाई ए एल ए एम, मलयालम को मैं अगर उल्टा करूंगा तो सेम चीज आएगी। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो सेम चीज आएगी, एम ए एल वाई ए एल ए एम। ठीक है, तो मलयालम वुड बी अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे हैकर रैंक का, हैकर अर्थ का सॉरी। इस क्वेश्चन में क्या है कि यू हैव बीन गिवन a string s, you need to find print whether this string is palindrome or not. If yes then print yes, if it is not then print no. इनपुट फॉर्मेट में दिया हुआ है कि the first and the only input will be contain that string s। अपन को एक s में इनपुट लेना, that would be a string, और आउटपुट में हमको प्रिंट करना है yes or no, that would be a palindromic string or not a palindromic string, like that। ठीक है, तो मेरे पास जैसे एक मैंने इनपुट लिया एस, एंड इनपुट वुड बी इन स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने एक इनपुट ले लिया और मैं कैलकुलेट करूंगा। मैंने पहले ना इसको इफ एल्स लगा दूंगा डायरेक्ट, इफ एस इज इक्वल टू, मैंने रिवर्स किया स्ट्रिंग को। रिवर्स कैसे किया, डॉट मान रहा, ये मैंने रिवर्स किया यहाँ पे, इस कोड की हेल्प से मैंने रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को। सो इफ दिस एस इज इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग, देन इट इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यस, एल्स वी विल प्रिंट नो, एल्स विल प्रिंट नो। ठीक, सिंपल सा कोड है, सिंपल सा कोड है। विल कंपाइल एंड टेस्ट दिस। ठीक है, तो इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है, ये स्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम होगा, लेट्स से यहाँ पे अगर मलयालम आया, तो पहले यहाँ पे मलयालम आया, मलयालम वुड बी रिवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। ठीक है, इस कोड से मलयालम जो होगा वो रिवर्स होगा, और मलयालम इक्वल्स टू मलयालम यहाँ पे हो जाएगा, देन इट विल प्रिंट यस, और अगर फिर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यस दे देगा। ठीक, सैंपल टेस्ट केस हैज बीन पास, वी कैन सबमिट द कोड। ठीक है, एंड ऑल द टेस्ट केसेस हैज बीन पास। ठीक है, I think this question would be clear, right? If you have any doubt, you can ask in the chat box, right? We will discuss. But I think this is simplest question, right? That I have found in Hacker Earth. Okay, all the test cases has been passed. Okay, so with the help of this code, we can reverse the string, and after this, we can print if it is palindromic string or not. Okay. I think for today's we have covered all the topics. We have done TCS NQT questions. We have done Hacker Rank. We have done Hacker Earth question. If you have any question, query, you can ask in the chat box. We will discuss. If you have not, then we can wind the question. We can wind up the session, right? I will share you the next 5 days schedule or the next week schedule, right, on our WhatsApp group. Okay, I will share a schedule like that. So keep an eye on our group. And if you have any question or query, you can ask in the chat box. We will discuss. If you have not, then we can wrap up this call. If you have missed any lecture, then you can find on our web page. Then we can find you can find on our YouTube channel. Right, all the lectures are available over here. Right? All the recordings are available over here. Day 4, day 3, day 1.
एंड ऑल द हैकरिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जाके पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। रिवर्स वाला कोड कैसे रन नहीं हो रहा? ठीक है, -1 यहाँ पे चैट में टाइप करो कि विच कोड यू आर रनिंग। चैट में टाइप करो कौन सा कोड तुमने चलाया। if this would be the code then it will run fine. If it is not then कुछ शायद गलती कर रहे हो कि तुम, you might be taking some variable over here. नहीं अनुराधा, व्हाट यू आर डूइंग राइट, मैं बताता हूँ क्या कर रही हो तुम। ठीक है, तुमने क्या किया, इस इनपुट, ये तुमने इनपुट किया। ठीक है, इस इनपुट के बाद में तुमने उस स्ट्रिंग को क्या किया, उस स्ट्रिंग को तुमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद में तुमने क्या किया, रिवर्स करने के बाद में तुमको लगा कि ये एन के अंदर रिवर्स हो गई है और आ गई है, लेकिन अभी ये एन के अंदर आई नहीं है। इट इज नॉट स्टोर्ड इन एन। इफ यू वांट टू स्टोर इन सम अनदर वेरिएबल, लेट्स से मैंने एस में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो इट विल बी प्रिंटेड एज इन द रिवर्स ऑफ एन। ठीक है, तो अब मैंने इसको एस में स्टोर कर दिया। लेट्स से अब देखो ये TUPNT। ठीक है, ये हो गया। लेट से मैंने अगर यहाँ पे एन दे दिया इसको, ठीक है, अगेन वी हैव रिप्लेस्ड द एन विद रिवर्स ऑफ एन। ठीक है, वी हैव रिप्लेस्ड द एन विद रिवर्स ऑफ एन, तो यहाँ पे उल्टा होके प्रिंट हो जाएगा ये। बट अभी तुम क्या कर रही हो, तुम डायरेक्टली तुमने यहाँ पे रिवर्स तो कर दिया, लेकिन तुमने उसको स्टोर कहाँ पे किया, स्टोर कहाँ किया है तुमने? एन के अंदर तो अभी वही है ना, एन के अंदर तो अभी इनपुट ही है ना, एन के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग थोड़ी ना आई है। एन के अंदर तो रिवर्स स्ट्रिंग जब आएगी तुम एन के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग डालोगी। अब तुमने एन के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग डाली है। ठीक है, आई थिंक दिस विल मेक सेंस। दिस कोड विल मेक सेंस। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि तो एल के अंदर हम लोग जैसे लिस्ट में या फिर वहां पे चेंज करते हैं, तो वी विल ऐड लाइक दैट एल डॉट अपेंड, देन दिस कोड हेल्प अस टू अपेंड समथिंग इनटू एल। बट what this code is doing this code is only reversing the string, not reversing and storing into another variable. This code will help us to store the variable into another स्टोर द वैल्यू इनटू अनदर वेरिएबल। ये जो कोड है ये स्टोर नहीं कर रहा है, ये केवल बस रिवर्स कर रहा है। ठीक है, ये बस रिवर्स कर रहा है तुम्हारे लिए। अब स्टोर कौन सा कोड कर रहा है, ये वाला कोड कर रहा है। ये वाला कोड ने यहाँ पे इसको रिवर्स करी, उसके बाद में एक एस नाम के स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया और उस एस को तुमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली इसको प्रिंट करोगी तो वहां पे प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन वो स्टोर नहीं हो रहा है वहां पे। अगर तुम इस एन को यहाँ से प्रिंट करोगी तो इट इज प्रिंटिंग, बट इट इज नॉट स्टोरिंग।